کیا تھا محمد کی نبوت کا وہ ٹرننگ پوائنٹ جب ایک ساتھ کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا؟ اوس اور خزرج قبیلوں کا اسلام قبول کرنا ایک ایسی گھٹنا جس نے محمد کی زندگی ہی بدل دی، اور اس سے محمد کو ایک اتنی بڑی پہچان ملی جو شاید کبھی خدیجہ کے وقت ہی ملی تھی۔ یہ اتنی بڑی سپورٹ تھی کہ محمد کو اب مکہ میں رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا تھا۔ جانیں گے پورا واقعہ آج کی ویڈیو میں پورے ریفرنسز کے ساتھ، تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک، اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ دا محمد، جس سیریز میں ہم محمد کی زندگی کو بالکل شروع سے سمجھ رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک کے کئی بڑے قصے بھی جان لیے۔ ان سبھی قصوں میں اسلام کے سفل ہونے کے پیچھے جو کچھ گھٹنائیں ذمہ دار ہیں، ان میں پہلا تھا خدیجہ کی محمد سے شادی، جس کے بعد محمد کے نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد خدیجہ اور خدیجہ کی ریسپیکٹ کرنے والوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ دوسرا بڑا قصہ ہے اوس اور خزرج قبیلے کے لوگوں کا اسلام قبول کرنا۔ خدیجہ اور چاچا ابو طالب کی موت کے بعد محمد کا اسلام جو بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور شاید محمد کے مرنے کے بعد کوئی اسے یاد بھی نہ کرتا، کیونکہ محمد جیسے نہ جانے کتنے نبی ان دنوں عرب میں روز آتے اور جاتے تھے جو کبھی کچھ نہ کر پائے، لیکن دو قبیلوں کے اسے قبول کرنے پر اچانک اسلام پھر سے جاگ اٹھا، اور یہیں سے اسلام کے پھیلنے کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا کہ جہاں کچھ قبیلے کے لوگ محمد کو پتھر مارتے تھے، وہیں کچھ قبیلے کے لوگوں نے اچانک کیسے اسلام کو قبول کر کے اس مرے ہوئے ریلیجن کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اسلام کی دعوتیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں محمد کے طیف کے سفر کے بارے میں جانا، اسلام کے اکارڈنگ یہ محمد کی زندگی کے سب سے بدترین دنوں میں سے ایک تھا، مگر پھر اس کے بعد سے محمد کی قسمت بدلنے والی تھی۔ 50 کی عمر میں 10 سال تک نبوت کی ناکام زندگی جینے کے بعد اچانک سے اسلام کے دعوت دینے کی یہ کوشش رنگ لانے لگی، اور محمد اپنے آپ کو نبی منوانے کے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے لگا۔ یہ کامیابی محمد کو اللہ کی طرف سے نہیں ملی، کیونکہ اللہ تو ہے ہی نہیں۔ اس موقع پر اسلام کے پھیلنے کی صرف ایک ہی وجہ بنی، اور وہ تھی پالیٹکس۔ جی ہاں، طیف سے واپس مکہ آ کر کچھ سالوں میں ہی عرب کے کچھ قبیلوں نے اپنے راجنیتک فائدوں کے لیے ہی اسلام قبول کر لیا، اور یہ محمد کو اپنا نبی ماننے کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مکہ میں ہر سال جب بھی حج کا مہینہ آتا، اس وقت پورے عرب کے دور دور کے علاقوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ حج کرنے کا یہ طریقہ عرب کے بت پرستوں کا اپنا بنایا گیا رواج تھا، جسے صرف اور صرف عرب کے پیگنس لوگ ہی تیوہار کی طرح منایا کرتے تھے، مگر اس حج کا ابراہمک مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے یہودی اور نہ ہی عیسائی اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے تھے۔ اس بارے میں میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی ہے جو آپ دیکھ کر اسے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، یہی وجہ سے عرب کے الگ الگ علاقوں میں صرف پیگنس لوگ ہی مکہ میں حج کے مہینے میں جمع ہوتے تھے۔ انہی لوگوں کے ذریعے محمد کو ایک بار پھر سے موقع ملا کہ وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا پائے، کیونکہ جب بھی ہر سال حج کے مہینے میں یہاں میلہ لگتا تو محمد ترنت یہاں پہنچ جاتا، اور پھر کسی کو بھی اسلام کی دعوت دینے سے نہ چوکتا۔ محمد کی یہ امید تھی کہ شاید کوئی تو اس کی بات کو سچ مان لے گا۔ حالانکہ اس موقع پر محمد کے اپنے قریبی لوگ اکثر محمد کے ان جھوٹے دعووں کے بارے میں بھی لوگوں کو بتاتے، جیسے اس کا سگا چچا ابو لہب، جس نے پہلے تو ابو طالب کی طرح ہی محمد کی رکھوالی کرنے کی پوری کوشش کی، مگر بعد میں محمد کی کٹر سوچ کے چلتے اس نے محمد پر سے وہ پروٹیکشن ہٹا دی جو ابو طالب کے وقت سے اسے مل رہی تھی، اور یہ باقی لوگوں کو بھی محمد کے جھوٹے دعووں کے بارے میں بتاتا تھا تاکہ کوئی بھی انجانے میں آ کر محمد کو نبی نہ مان لے۔ ابو لہب جانتا تھا کہ اس کے بھتیجے کا بنایا مذہب بہت خطرناک ہے،
जो फर्जी ईमान के लिए लोगों को अपने लोगों से भी मोहब्बत नहीं करने देता। इसलिए वो अपना कीमती वक्त देकर भी कोशिश करता था कि मोहम्मद कामयाब ना हो। दूसरी तरफ मोहम्मद अपने दावों को लेकर जिद्दी था। ये जबरदस्ती लोगों के पास जाता और उनसे अपनी बात रखता। हज के मौकों पर ये मेलों में और मीना के मैदान में जहां लोग अपने ठिकानों में आराम कर रहे होते थे, वहां जाकर लोगों को इस्लाम कबूल करने को कहता। तबरी में आता है, मोहम्मद अरब के तमाम कबीलों के लोगों के पास जाता और उनसे कहता कि मैं अल्लाह का रसूल बनाकर तुम लोगों के पास भेजा गया हूं। मुझ पर ईमान ले आओ और मेरी तस्दीक करो। मैं अल्लाह की तरफ से हूं जिसने मुझे नबी बनाया। इस दौरान मोहम्मद का चचा अबू लहब भी अक्सर मोहम्मद के पीछे चलता और बाद में जाकर उन लोगों से कहता कि ए फला फला कबीलों के लोगों, मोहम्मद तुम लोगों को तुम्हारे दीन से भटका रहा है। तुम लोग हरगिज इस झूठे शख्स की बातों में ना आना। यानी मोहम्मद के करीबी लोग जो इसे अच्छे से जानते थे, वो भी बाकियों को इससे और उसके झूठे दावों से दूर रखते कि ये झूठा नबी है, इससे दूर रहो। मोहम्मद अक्सर हज के मेलों में जाकर लोगों से कहता कि क्या तुम लोगों में से कोई शख्स ऐसा है जो अपनी कौम की हिमायत मुझे पेश कर सकता है, क्योंकि कुरैश के लोग मुझे इस्लाम की दावत देने से रोक रहे हैं। मगर किसी ने भी मोहम्मद की बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद के पास सिर्फ दावे थे, दलील नहीं। खजरज और औस कबीलों का अचानक मान जाना। इसी तरह काफी वक्त तक मोहम्मद ऐसे ही हज पर आए लोगों को दावत इस्लाम देता रहा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। खैर, इन तमाम लोगों से ना सुनने के बाद एक साल ऐसा आया जब कुछ चुनिंदा लोग यहूदियों से नफरत के चलते इस्लाम कबूल करने को तैयार हो गए। इस वक्त मोहम्मद उकबा के मुकाम पर पहुंचता है। उकबा वहां की घाटी का नाम था। वहां जाकर एक बार मोहम्मद की मुलाकात खजरज कबीले से हुई, जो कि यसरिब से यहां हज करने के लिए आए थे। यसरिब मदीना का पुराना नाम था, जिस नाम को हिजरत के बाद मोहम्मद ने बदल दिया और इसका नाम अपने ऊपर रख दिया, यानी मदीनातुल नबी। इसके बाद मोहम्मद मदीना का अरबियों को अंसार कहा करता था, जिसका मतलब है मदद करने वाले लोग, क्योंकि मदीना के इन कबीलों ने हाथों हाथ मोहम्मद को एक ही बार में अपना नबी कबूल कर लिया था। ये मदीना के दो कबीले थे, औस और खजरज। औस और खजरज ये दोनों मदीना के वो कबीले थे जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदों के लिए मोहम्मद को नबी मानने में देरी नहीं की। ये दोनों कबीले भी दूसरे अरबों की तरह मक्का में हज करने के लिए आए थे। उस वक्त इनकी तादाद सिर्फ 6 थी जब ये मक्का आए थे। जब मोहम्मद ने उकबा की घाटियों में इन्हें देखा तो तुरंत इन लोगों के पास गया। तारीख अल तबरी में आता है, जब मोहम्मद की मुलाकात खजरज कबीले के लोगों से हुई तब मोहम्मद ने इनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो। इन्होंने कहा कि हम खजरज कबीले के लोग हैं। जब मोहम्मद को पता चला कि ये लोग यहूदियों के शहर यसरिब से हैं, तो मोहम्मद ने इनसे कहा कि जरा बैठो, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। फिर मोहम्मद ने इन लोगों को इस्लाम की दावत दी। इस्लाम की दावत मिलते ही एक ही पल में बिना कुछ सोचे और समझे और बिना मोहम्मद से उसकी नबूवत का सबूत मांगे इन्होंने इस अनजान शख्स को सच्चा नबी मान लिया। ऐसा करने की असल वजह क्या हुई थी, इसके बारे में हमें तारीखी किताबों से ही पता चलता है। कई इस्लामिक रेफरेंस से ये बात साबित है, यहूदी यसरिब के अक्सर इलाकों में आबाद थे। अब क्योंकि वो अहले किताब और आलिम लोग थे, इसीलिए यसरिब के अरबी लोग इनसे हसद रखते थे, यानी इनकी कामयाबियों से जलते थे। क्योंकि उस वक्त मदीना में सिर्फ यहूदियों का ही गलबा था, इसलिए जब भी कभी यहूदियों और मदीना के अरबियों के बीच झड़प होती तो यहूदी अक्सर इनसे ये बात भी कहते थे कि जल्द ही एक नबी आने वाला है, और जब भी वो नबी आएगा हम इसके साथ होकर तुमसे जंग करेंगे और तुम्हें पूरी तरह मिटा देंगे। इसलिए जैसे ही मोहम्मद ने इनसे कहा कि वो एक नबी है, तो यसरिब यानी मदीना के अरबी लोगों ने कहा कि जरूर ये वही नबी है जिसके बारे में यहूदी हमें बताते और इससे हमें डराते थे। कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमसे पहले इसके पास चले जाएं, इसलिए हम यहूदियों से पहले ही इसकी दावत को कबूल कर लें और हम उनसे पहले ही इसे अपना नबी मान लें। और फिर यहूदियों से आगे निकलने के चक्कर में ही मोहम्मद को सच्चा नबी मान लिया बिना सोचे समझे। यानी ये बात पूरी तरह से साबित है कि मदीना के अरबों ने राजनीतिक फायदे के लिए ही इस्लाम को कबूल किया। मोहम्मद की इतने सालों की नाकाम जिंदगी में मोहम्मद को एक जबरदस्त कामयाबी मिली। इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि इस्लाम के फैलने के सिर्फ 3 ही फेजेस हैं।
पहला जब खदीजा के रुतबे और दौलत की वजह से इस्लाम फैला, जिनसे अबू बकर, जैद और अली जैसे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। दूसरी बार जब मदीना से आए औस और खजरज कबीलों के लोग यहूदियों से दुश्मनी के चलते और अपने राजनीतिक फायदों के चलते मोहम्मद को अपना नबी कबूल कर लेते हैं। और तीसरा जिहाद, जब इन्होंने मदीना के अंसार लोगों के साथ धीरे धीरे लोगों पर जिहाद के नाम पर हमला करके उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर दिया। और फिर यही जिहाद का सिलसिला खिलाफत और उसके बाद के वक्त तक भी चलता रहा। खैर, यहाँ हम उस वक्त के अरब के राजनीतिक हालात को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कबीले ऐसे भी थे जो किसी भी कंडीशन पर मोहम्मद को सच्चा नबी कबूल करने के लिए राजी ही नहीं थे, जिसकी वजह भी पता चलती है। मोहम्मद ने इस्लाम की दावत कबीलाए खंद, कबीलाए हनीफ और कबीलाए अम्र और भी तमाम कबीलों को दी, मगर किसी ने भी मोहम्मद को सच्चा नबी नहीं माना। इन्हीं में से कुछ कबीले के लोगों ने मोहम्मद से पूछा कि अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो क्या इस्लाम कबूल करने से हमें लोगों पर गलबा मिलेगा? अगर तुम्हें अपने दुश्मनों पर फतेह मिल जाए तो क्या तुम्हारे बाद हमें खिलाफत मिलेगी? क्या हम लोग इस्लाम कबूल करने के बाद हुकूमत कर सकेंगे? यानी ये लोग सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए ही किसी की भी पैरवी करने के लिए तैयार थे। इस वक्त इन लोगों के सवालों के जवाब में मोहम्मद ने इनसे कहा कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और जब मोहम्मद की तरफ से उन्हें हुकूमत की उम्मीद नहीं हुई तो इन्होंने हर मुमकिन हालात में इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने ये कहकर मोहम्मद को ठुकरा दिया कि क्या हम तुम्हारी हिमायत में अरबों से लड़ें और अरबों के तीरों का सामना करें, और अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हारी सरदारी और हुकूमत दूसरों को मिले। इसलिए इन्होंने किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया सिवाय यसरिब के कबीलों के, क्योंकि यहूदी उस वक्त पूरे शहर भर में सबसे ज्यादा कामयाब थे और यसरिब के अरबी बस किसी न किसी कंडीशन में उनसे आगे निकलना चाहते थे। तो ये था वाकया मोहम्मद के मरे हुए इस्लाम को फिर से जिंदा होने का, जिसमें कुछ अरबिक लोगों ने मदीना के यहूदियों की कामयाबियों से जलने के चलते इस्लाम कबूल किया। यही रीजन से हमें आज के इस्लाम में भी यही देखने को मिलता है, जिसमें यहूदियों के लिए नफरत कूट कूट के भरी पड़ी है। आज हमें ऊपर से देखने पर इस्लाम बहुत पीसफुल दिखाई देता है, मगर पूरी कायनात को बनाने वाला मोहम्मद को कहता है कि कयामत की निशानी में एक वक्त वो आएगा जब यहूदी पेड़ों और पत्थरों के पीछे छुपे होंगे, और जब मोमिन उन्हें ढूंढ रहे होंगे तो पत्थर और पेड़ खुद बताएंगे कि ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है। क्या आपको ये खुदा का कलाम लगता है? क्या आपको लगता है कि आपको बनाने वाला खुदा इतनी छोटी सोच का होगा कि अपनी ही बनाई एक कौम से दूसरी कौम को इतनी नफरत करवाएगा? और क्या आपको यह भी लगता है कि कयामत के वक्त दुनिया फिर से पेड़ों और पत्थरों के पास तलवार लेकर लड़ेगी? मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ज्यादा कुछ नहीं है, जो सिर्फ मासूम पर हुकूमत का तरीका बता सकता है, नफरत सिखा सकता है, आवाम पर जुल्म कर सकता है। जैसे ईरान में एक बच्ची पर जुल्म हुआ जिससे उसकी जान चली गई। उस जुल्म पर आवाज उठाने वाले 50 लोगों को मार दिया गया। इंसानियत के लिए ये कुर्बानियां वेस्ट नहीं जाएंगी। इस्लाम जैसी गंदी कट्टर कॉन्सेप्ट अब और ज्यादा नहीं चलेगी। पाखंड, झूठ और खूनी कट्टरता से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। दुनिया जाग गई है, आप भी जाग जाइए। आइए कट्टरता छोड़कर इंसानियत की तरफ चलें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।